ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಮಹಾರಾಜರಾದಂತಹ ಜೈನ ಮುನಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಹಾಸಾಗರ ಗುರುಜಿಯವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಗುರುಗಳಾದ ಮಂಥನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ವಿರಳ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶೀತಲ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಭರತ್ ಧನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವೀರಸಾಗರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿವರನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಬಂದಿ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದು 9ನೆಯ ದಿನ. 9ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು 3ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿಗಳ ಒಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರದೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿಗಳ ಒಂದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಕಾರಾಗೃಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿಗಳ ಒಂದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದೇ ಆದರ್ಶದ ಮೇಲೆಗೆ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯೋಜನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಂತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಗುರೂಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವಿ ಗುರೂಜಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಇದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೇ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ನಾವು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿಗಳ ಒಂದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಹಾದಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 6 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲು, ಚೇರ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಕರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ರನ್ ಆಗತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮೈಕು. ನಾನು ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ರೀ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರೂಜಿಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಾತು ಕೃತಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹಾಗಾಗಿ ಔಜಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಗುರೂಜಿಯವರು ಓಕೆ ಅಂದರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟನ್ನು 8 ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಡ್ಫಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೈಯ ಕಾಲ ನೋವು ಬರುತ್ತಂಥೇಳಿ 8 ಸಂಖ್ಯೆಯ
ಒಂದು ತಡಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಂದಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಈ ಮನಪರಿವರ್ತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೈಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿತನ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಫಲ ಉಂಟು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರೀ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಅಂದರು, ನಮಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಚೇರು ಅದನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬೇಕು. ನೀವು ಜೈಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಡೆದಾಕಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। परम पूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य वर्तमान आचार्य परमेश्वरी समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य नीलापक्ष मनमुनि वीर सागर जी महाराज की। देखिए इस जेल का, बीजापुर की इस जेल का सौभाग्य, कहीं गुरुदेव के चरण एक हाथ बार कभी जेल में पड़ जाए 2-5 साल में, लेकिन गुरुजी का यहाँ 10 दिवस का प्रवास हुआ और उसमें आज तीसरी बार इस जेल में गुरुजी का आगमन हुआ है। आप लोगों का पुण्य इतना है, इस पुण्य के सम्मान में ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। ऐसे महान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज, जैसा कि आपको उस दिन बताया था, इस देश में कर्नाटक राज्य में सदलगा गांव में जन्मे और यहाँ की भूमि के बिल्कुल नजदीक है कर्नाटक में चिक्कोड़ी तहसील जिला बेलगांव में जन्मे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में धर्म का डंका बजाया। उनके सानिध्य में कितने ही साधु, कितने ही आरिका माता, कितने ब्रह्मचारी, कितने व्रती लोग हुए। ऐसे महान गुरु के शिष्य निर्यापक्षमणि वीर सागर जी महाराज का इस जेल में आज तीसरी बार आगमन हुआ है। और आज का आगमन क्यों हुआ है आप सभी जानते हैं। एक ऐसी संस्था जिसका नाम है विद्या ग्रेस फाउंडेशन, जिसके द्वारा यहाँ पर इस जेल में कंप्यूटर सामग्री, साउंड सिस्टम उपलब्ध करवाई गई है और आपके यहाँ एक सेंटर प्रारंभ हुआ है, आचार्य विद्यासागर जी कम्युनिटी केंद्र। आप सभी इसका लाभ लेंगे। अब हम निवेदन करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपने गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव, हे गुरु, अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। ओम। विगत 3 दिन से आप लोग यहाँ मल्लिकार्जुन सुप्रिटेंडेंट के साथ योगा ध्यान कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। वैसे साधु हमेशा मंदिर में जाते हैं, अपने प्रभु की उपासना करते हैं, पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता जेल में जाने की है, ऐसा लगता है। समाज में रहने वाले लोग तो वैसे ही साफ सुथरे रहते हैं, अब आचरण बहुत अच्छा करते हैं,
पर सुधार की आवश्यकता उन्हें होती है जो किसी गलती के कारण बंदी गृह में आकर के फंस गए हैं। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है पुनः इस विजयपुरा आए हुए हम लोगों को। अभी 8 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस 8 दिन के प्रवास में हम तीसरी बार इस सेंट्रल जेल में आ गए। कहीं पे इतनी बार जेल में नहीं गए। हम मथुरा जेल में गए थे, आगरा के जेल में गए थे, दिल्ली के आदि जेल में गए थे, औरंगाबाद संभाजी नगर जेल में भी गए थे, लेकिन वहाँ गए थे सिर्फ कुछ समय के लिए और एक ही दिन के लिए। और बीजापुर में इतने ही कम दिनों में जल्दी आना हुआ, तो ये मान कर के चलना आप सभी जो बंदी हैं आप सबका बहुत पुण्य है, तभी साधु यहाँ पर खिंचे चले आए। क्योंकि साधुओं के दर्शन बड़ूप के दर्शन के योग से ही होते हैं। पाप का योग जब होता है तो व्यक्ति गलत रास्ते पे कदम बढ़ा लेता है, और पुण्य का जब योग होता है उसकी अच्छी किस्मत होती है, तब कहीं जाकर के जीवन में अच्छा संयोग। और सबसे बड़ा सत्संग यदि कोई होता है तो वो गुरु का सत्संग होता है। कहा जाता है गुरु तो प्रभु से भी बड़े होते हैं। अस्तित्व गुरु का महत्व भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि गुरु हमसे बोलते हैं, भगवान हमसे। शास्त्र की जो पंक्तियां हैं वो हमें समझ में नहीं आती, बड़ी कठिन होती है। मात्र एक गुरु ही होते हैं जो शास्त्र और प्रभु की भाषा को हम तक पहुंचाने वाले होते हैं और सामान्य मन को बदलने वाले होते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए। एक दोहा, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गोविंद से अर्थ यहाँ पर प्रभु है। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। पहले मैं किसको नमस्कार करूं, पहले किसके चरणों में मैं झुकूं? तो कहा गया है बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। पर हमारे गुरुदेव पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी कहते हैं गुरु जो है गोविंद को बताने वाले नहीं होते हैं, गुरु तो गोविंद को बनाने वाले होते हैं। हक के भीतर हर रूह में एक परमात्मा होने की शक्ति छिपी हुई है, और उस परमात्मा को उद्घाटित यदि कोई करते हैं तो एकमात्र गुरु होते हैं। वे ही होते हैं जो हमें प्रभु से मिलाने वाले होते हैं, वे ही जो होते हैं जो हमारे पापों का प्रक्षालन करने वाले होते हैं। तो मंगलाचरण करें उससे पूर्व, जब पहले दिन आए थे आपको कहा था सभी लोग गहरी सांस लेकर के बहुत के दीर्घ उस बीजाक्षर मंत्र की ध्वनि करना, ताकि आपका मस्तिष्क शुद्ध हो, आपका शरीर शुद्ध हो। हमारे साथ आप भी करेंगे। ओम अहिंसा की, भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव सागर जी महाराज की, पूज्यवर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, आनंद की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम यहाँ उच्चारण कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ी देर बाद ही शांत हो गए। ये तो उनकी सांस रुक गई या थक गए। हरी प्राणी कैसा है, जब पाप करने की बात आती है वो कभी थकता नहीं। थकता है? जब गलत कार्य करने की बात आती है वो कभी थकता नहीं, हिम्मत नहीं हारता है। लेकिन जब जब अच्छे कार्य करने की बात आती है जल्दी थक जाता है।
यदि हम पाप करने में बहुत थकते नहीं हैं, बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से चलते हैं, इसका अर्थ है शक्ति तो सबके भीतर नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है कि नहीं, बस आवश्यकता है दिशा बदलने की। भोगी की जिंदगी बदलती है तो वो बहुत जल्दी एक योगी भी बन जाता है। जब कोई पापी बदलता है हृदय से तो बहुत जल्दी वो योगी की छांव में योगी बन जाता है। और आज आप योगियों की छांव में बैठे हैं। इस बीजापुर के केंद्र कारागृह में उद्देश्य है, आज बहुत सुंदर प्रसंग है, पूज्यवर गुरुदेव के आशीर्वाद से और उन्हीं के नाम से आचार्य श्री विद्यासागर कम एवं ध्यान केंद्र का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे गुरुदेव जो चलते फिरते भगवान माने जाते थे, वो मंदिर में भगवान की आराधना कम करते, ऐसे क्षेत्र में जाकर के आराधना ज़्यादा करते थे जहां हम दूसरे के हृदय को परिवर्तित कर सके, दूसरे के मन को बदल सके। पर उन्हीं के आशीर्वाद से आप सबके मन को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और व्यक्ति का मन तब बदलता है जब उसे उसकी आवश्यकताएं बहुत आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भूखा होता है, पेट में कुछ नहीं होता है, तो वो प्रभु की भी आराधना नहीं कर सकता। भूखे पेट न होए भजन गोपाला। भगवान की भी आराधना करना है, यदि खुदा की भी इबादत करना है तो पहले व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है। और उसे भोजन की पूर्ति तब होती है जब उसके पास रोजगार होता है, जब उसके पास पैसा होता है, कमाने के साधन होते हैं। दुनिया में पाप वे ही करते हैं, अपराध वे ही करते हैं जब कोई उनके ऊपर गहरी मजबूरी आ जाती है और वो गलत रास्ते पर कदम बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब उन्हें रोजगार का साधन मिल जाता है तो वो उस पाप के रास्ते को छोड़ करके, हृदय को परिवर्तित करके एक नए ही समाज की धारा में जुड़ जाते हैं। और आचार्य भगवान ने, हमारे गुरुदेव ने यही सोचा कि जिन्हें आवश्यकता है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। और उसी उद्देश्य को लेकर के देश के भिन्न भिन्न सेंट्रल जेल में पूज्यवर गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत सारे हथकरघा केंद्र चल रहे हैं। और उन हथकरघा केंद्र में वे बंदी जन ही स्वयं सवेरे से शाम तक काम करते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, धोती बनाते हैं, शूटिंग शर्टिंग के कपड़े अपने हाथों से हैंडलूम के माध्यम से बनाते हैं। और जितना भी वो प्रोडक्ट करते हैं, जितना भी उत्पादन करते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक जाते हैं और सारी की सारी जो सैलरी है उनके अकाउंट में अपने आप चले जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बीजापुर के केंद्र कारागृह में एक बहुत अच्छी योजना शुरू हो रही है। क्योंकि आज वृद्ध लोग कम और युवा लोग बहुत अधिक अपराध के मार्ग में आगे बढ़ने लगे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है उनकी सारी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है। तो उसे ही देखते हुए ऐसे पढ़े लिखे भी युवा हैं जो इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, MBAs भी हैं, BCom भी हैं, अथवा 12th तक पढ़े हुए हैं, उनकी क्षमता बहुत है। तो वो यहाँ रह कर के कंप्यूटर शिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर, टैली है, DTP है, अन्य लैंग्वेज है, यहाँ पर रहते रहते सीख सकते हैं और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और इसी को लक्ष्य में रखते हुए सर्वप्रथम यहाँ पूज्यवर गुरुदेव के नाम से आचार्य श्री विद्यासागर कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा यदि सहयोग दिया है तो विद्याग्रेश फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो गुरुदेव के आशीर्वाद से शुरू हुई और समाज कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी है। समाज में रहने वाली जो विधवा वर्ग है, समाज में रहने वाले जो बच्चे अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, अथवा वे बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं पैसों के अभाव में, फीस के अभाव में, उन्हीं की सेवा के क्षेत्र में वो आए हैं। और जीव दया के क्षेत्र में संस्था कार्य कर रही है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से केंद्रीय जेल में भी ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि यहाँ रह कर के वे कैदी जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत भी सीख सकते हैं। यदि आपने यहाँ रहते हुए कंप्यूटर शिक्षण प्राप्त कर लिया तो जब यहाँ से निकलोगे तो आपके पास एक नौकरी होगी और एक नौकरी के माध्यम से अथवा अपने छोटे से स्थान में कंप्यूटर सेटअप डाल करके आप अपने घर का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जहां घर के भरण पोषण की आवश्यकता पूर्ण हो गई तो व्यक्ति का मन अपने आप ही उस अपराध के रास्ते को छोड़ करके, गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते की ओर कदम बढ़ा लेगा।
लेकिन व्यक्ति तब ये करता है, इसके साथ साथ जब उसका मन बदलता है। तो मन को बदलने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है, मन को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है जब वो ध्यान की प्रक्रिया से, योगा की प्रक्रिया से जुड़ता है। तो जहाँ वो योगा और ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ता है, उसका मस्तिष्क भी शुद्ध होने लगता है, उसके विचार भी शुद्ध होने लगते हैं, और जहाँ विचार शुद्ध होने लगते हैं तो उसका हृदय भी बदलने लगता है। बस उसी हृदय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आचार्य गुरुदेव के नाम से यहाँ योगा ध्यान केंद्र की शुरुआत भी हो रही है। और इसमें यदि सहयोग दिया है तो यहाँ बीजापुर के रहने वाले कुछ श्रावक हैं, उन श्रावकों से चर्चा हुई। धनशेट्टी परिवार है, विकास शाह परिवार है, भरत जी हैं, समीर जी हैं। उन्होंने शहर से भावना भाई कि महाराज जी जो भी आवश्यकता है, यहाँ संस्था के माध्यम से जितने भी कंप्यूटर सेट आने वाले हैं, उन्होंने स्वयं स्वेच्छा से भावना भाई की जो भी आवश्यकता है, आपके ध्यान के लिए आवश्यकता है, वो सारी की सारी पूर्ति हो जाएगी। और इतना ही नहीं, यदि आपने यहाँ अच्छा दिखाया तो आगामी काल में एक हथकरघा की योजना भी यहाँ शुरू हो जाएगी। तो जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करे हुए हैं तो वो व्यक्ति हथकरघा के माध्यम से अथवा बेकरी के माध्यम से कुछ ऐसा रोजगार कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी पत्नी जो आपकी माँ इंतजार कर रही है घर में, उन्हें भी एक सहूलियत मिल सके और घर बैठे बैठे उन्हें भी वो राशन पानी की व्यवस्था हो सके। फिर वह भी आप लोगों को और उन लोगों को दुआएं देंगी जिनके माध्यम से ये कार्य का संचालन हो रहा है। तो कार्य आगे बढ़े, मन की शुद्धि हो, उससे पूर्व शुरुआत करते हैं। पिछली बार हम आए थे, हमने आपसे कहा था हृदय परिवर्तन की शुरुआत किससे होती है जानते हो? जब हम पश्चाताप से भरते हैं। हम आपको कुछ पंक्ति कह रहे हैं, उसे दोहराना, फिर अपन जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे भगवन मुझे एक बार, बोलो, मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, कि तू आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम जीवन की, मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे इत्तलाह कर देना। मुझे मौका बस एक देना, मुझे मौका बस एक हाथ जोड़ करके बोलो देना। अपने हृदय में पश्चाताप के भाव लाते हुए, मुझे मौका बस एक देना, मुझे मौका बस एक देना, कि मैं अफसोस कर पाऊँ, कि मैं अफसोस कर पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे, हुई जो गलतियाँ मुझसे, उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ, उन्हें मैं तुझसे कहता हूँ। मेरी आँखों में हो आंसू, मेरी आँखों सबको बोलना है, में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर, हो पश्चाताप अपने पर, मैं अपनी मान लूँ गलती, मैं अपनी मान लूँ गलती, चला सदराह पर देना, चला सब राह पर देना। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम जीवन की, मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे इत्तलाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार, मेरे भगवन मुझे एक बार, कि तू
इत्तलाह कर देना, कि तू इत्तलाह कर देना, कि तू आगाह कर देना, कि तू आगाह कर देना। अब भगवान तो हमें आगाह करने आएंगे नहीं। हाँ, भगवान अपने दूत को अवश्य भेजते हैं। इस दुनिया में जब भी उन्हें कोई काम कराना होता है तो वो अपने दूत को भेजते हैं, एक माध्यम को भेजते हैं। और भगवान का दूत यदि कोई होता है तो वो गुरु के रूप में होता है। गुरु ही ऐसे होते हैं जो हमें आगाह करते हैं। गुरु ही ऐसे होते हैं जो हमें गलतियों को बताते हैं, जो अपराध हमसे हो गए हैं उसे समझाते हैं, एक सही दिशा हमें दिखाते हैं, एक सदराह से पे चलना हमें सिखाते हैं। एक बात सबसे कहना चाहते हैं, आपने दुनिया में बहुत कुछ जोड़ा होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन एक संकल्प लेना, अपने जीवन में एक गुरु को खोज लेना। जिस व्यक्ति के जीवन में एक गुरु आ जाता है, बस वहीं से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और जब गुरु नहीं होता है तो व्यक्ति को समझाने वाला कोई नहीं होता, बताने वाला नहीं कोई होता, और वह व्यक्ति भटक जाता है। दुनिया में हम सबका जन्म भटकने के लिए नहीं हुआ है, ऊपर उठने के लिए हुआ है, आगे बढ़ने के लिए हुआ है, अच्छे कार्य करने के लिए हुआ है, दूसरों को कुछ देने के लिए होता है, दूसरे के हृदय को बदलने के लिए होता है। पशु और मनुष्य में सिर्फ एक अंतर होता है, पशु सिर्फ भोजन के लिए जीता है, पेट के लिए जीता है। पशु बच्चों को पैदा कर देता है, उसे बड़ा कर देता है, खिला पिला कर लेता है, लेकिन मनुष्य उससे कुछ बढ़कर के होता है। मनुष्य पेट के लिए अकेले नहीं जीता, मनुष्य के पास विवेक है, मनुष्य के पास ज्ञान है, मनुष्य के पास शक्ति है, मनुष्य के पास गुण है, मनुष्य के पास ऊपर उठने का भाव है। बस आवश्यकता है मस्तिष्क की सोच को बदलने की। आप सबसे कहना चाहते हैं, जन्म से कोई बुरा नहीं होता है। जब हम माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, सब नेक इंसान होते हैं। जन्म से कोई पाप सीख करके नहीं आता, गलत कार्य सीख करके नहीं आता है। जन्म से वो बालक एकदम निश्चल होता है। बालक को बिल्कुल प्रभु का अवतार कहा जाता है। बालक का हृदय एकदम निश्चल होता है, कोई छल नहीं उसके भीतर, कोई पाप नहीं उसके भीतर, एकदम निर्मल होता है। जैसा उसका मन होता है वैसे ही वो वचनों में बोल देता है, वो कभी छिपाता नहीं। वो गलती भी करता है तो तुरंत बता देता है। इसलिए बालक हमेशा पाक रहता है, बालक हमेशा पवित्र रहता है। आप यहाँ पर भले ही कैदी बन कर के रह रहे हों, आपके घर में भी आपके बालक होंगे, याद करो उन्हें। वो हमेशा पवित्र निश्चल रहते हैं, उनके मन में कोई छिपाव नहीं, कोई दुर्भाव नहीं। जो होता है वो तुरंत कह देते हैं। तो हमें जन्म से वह अवस्था मिली है, बालक की अवस्था, एक अच्छे इंसान को जीने की अवस्था। तो जन्म से सब एक जैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता। लेकिन कई बार जीवन में चलते चलते परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि वो व्यक्ति गलती कर जाता है। गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन गलती होने के पश्चात उसे हम जब मान लेते हैं, वहीं से हमारे जीवन की उन्नति शुरू हो जाती। आप रास्ते में चलते हो, गिर जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या गिरे पड़े रहते हो? बताना। कभी आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, पैर फिसल जाए, पैदल चल रहे हो और गिर जाते हो, तो गिरे पड़े रहते हो? नहीं। गिर भी जाते हो तो तुरंत उठते हो, अपने आप को संभालते हो, अपने कपड़ों को ठीक करते हो। चोट लगती है तो बैंडेज कर लेते हो, पट्टी बांध लेते हो, मरहम लगा लेते हो, दवाई खा लेते हो और फिर चलने लगते हो। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरने के पश्चात गिरे हुए बने रहना सबसे खतरनाक बात है। गिर कर उठना हर एक मनुष्य की फितरत में होता है, होना चाहिए। गिरना अथवा
पाप हो जाना, गलती हो जाना, अपराध हो जाना, परिस्थिति बस हो गई, बड़ी बात नहीं है। लेकिन गिर कर के हम अपने आप को जब संभालना सीख लेते हैं, और वो संभालना उसकी शुरुआत होती है उस पश्चाताप के भाव से। इसलिए यहाँ पर जो हमने आपको कुछ पंक्तियाँ कही हैं, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना, मेरे भगवान मुझे एक बार तू आगाह कर देना। तो भगवान आगाह करने नहीं आएंगे, भगवान किसी एक माध्यम को भेजेंगे, किसी एक दूत को भेजेंगे। तो आप लोगों का सौभाग्य, आपका पुण्य कि एक दूत ही आपको आगाह करने आया है। तो एक संकल्प ले लोगे आज? कौन सा संकल्प? मेरी आंखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर, मैं अपनी मान लूं गलती, चला सदराह पर देना। बस एक घटना आती, एक कथा आती, कहानी आती है। नाम सुना है आपने अंगुलीमाल का? एक बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा डाकू, इतना बड़ा कि उस जैसा आप में से कोई नहीं होगा। वो अपने गले में एक माला पहनता था, और उस माला में फूल नहीं होते थे, उस माला में उंगलियां होती थी। क्या होते थे? उंगलियां होती थी। जितने लोगों का कत्ल करता था, हर एक कत्ल के पश्चात उस व्यक्ति की उंगली को काट लेता था वो। सुनना ध्यान से। और उंगली को काट करके माला में पिरो देता था। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 999 उंगली अपनी माला में डाल चुका था। 999 लोगों का कत्ल उसने किया था। गांव से बहुत दूर जंगल में एक पहाड़ के किनारे रहता था। जो भी उस रास्ते से गुजरता था, धनवान रहता था, उसको पकड़ करके कत्ल कर लेता, पैसा लूट लेता और उसकी उंगली काट करके अपने गले में डाल लेता। सारा गांव उससे खौफ खाता था, उसके नाम सुन करके थर्राता था। कोई इस रास्ते पे जब कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि पता था कि वो बड़ा क्रूर है, वो बड़ा नृशंस है। दया तो उसके हृदय में है ही नहीं। वो किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं छोड़ता, जो मिलता उसे मार देता। एक बार एक साधु उस गांव में आए, और साधु तो गांव के होते नहीं, संत किसी के नहीं होते, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, वो तो हमेशा आते जाते रहते हैं। उनका तो प्रवास हमेशा चलता रहता है, वो रुकते नहीं कहीं। उनका कोई परिवार नहीं, सारी दुनिया ही उनका परिवार हो जाती है। कुछ दिन रुक करके साधु उस गांव से निकल करके उसी रास्ते पे जाने लगे जिस रास्ते पे गांव के बाहर पहाड़ के किनारे वो अंगुलीमाल रहता था। गांव के लोगों ने समझाया, हे गुरुदेव, इस रास्ते से ना जाया। बोले क्यों? इस रास्ते में बहुत खतरा है। बोले इस रास्ते पे जो गया वो लौट करके कभी नहीं आया। जो गया इस रास्ते पे वो मारा गया। बोले कैसे? बोले इस गांव के आगे एक खूंखार व्यक्ति रहता है, और सत्य घटना है, बिल्कुल कोई कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। और ऐसा खूंखार वो किसी को नहीं छोड़ता, मार डालता सीधे। उसके पास एक फरसा है, कुल्हाड़ी है, जो भी आता सीधे गर्दन पे प्रहार करता और मार देता। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, इस रास्ते से आप ना जाएं, वो बहुत क्रूर है, क्योंकि उसने सैकड़ों को मार दिया, मौत के घाट चला दिया। वो किसी की नहीं सुनता, किसी को क्षमा भी नहीं करता। सब उन साधु को रोकने लगे, मना करने लगे, इस रास्ते पे नहीं जाना है। जब साधु ने सुना कि ऐसा खूंखार व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा, अब तो मेरा जाना और ज़्यादा जरूरी हो गया है। अब मेरा जाना और ज़्यादा जरूरी हो गया है। बोले क्यों? साधु तो वही खोजना चाहता है। लोगों ने कहा, निवेदन किया, नहीं यहाँ से ना जाओ। बोले नहीं, अब तो मैं अवश्य जाऊंगा। यदि आप पहले कुछ और कह देते, दूसरा रास्ता बताते, तो सामान्य से मैं चला जाता, लेकिन आपने कहा कि वहाँ खूंखार व्यक्ति रहता, तो अब मेरा जाना और जरूरी हो गया है। बोले आज देखते हैं कौन किसे मारता है। बोले क्या बात हुई?
आज देखते हैं अंगुलीमाल मुझे मारता है अथवा मैं उसे मारता हूँ। बोले लोग बड़े आश्चर्य में, बोले ऐसे कैसे साधु, ये भी मारने की बात करने लगा? हाँ बोले ये भी मारने की बात करने लगा। बोलते आप तो मैं इस रास्ते से अवश्य जाऊँगा। सबने मना किया लेकिन वो नहीं माना, आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। दूर से उस अंगुलीमाल ने देखा कि एक व्यक्ति साधु के वेश में चला आ रहा है, सौम्य मुद्रा है। न जाने कि उसके मन में करुणा जागृत हो गई। उसने दूर से कह दिया रुक जाओ, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना। वैसे मैं किसी पे दया नहीं करता, लेकिन आपके रूप को, आपके वेश को देख करके मन में करुणा पैदा हो गई, इसलिए मैं सचेत कर रहा हूं, रुक जाओ, इससे आगे नहीं बढ़ना। पर साधु तो साधु होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, बड़े हट्टी होते हैं। वो आगे बढ़ते चले गए। बोले आज तक मैंने किसी को नहीं बख्शा है, ये हाथ में मेरा फरसा है, एक बार करूंगा तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। साधु कहते हैं, गुरु कहते हैं मौत से मुझे डर नहीं लगता है, तो मुझे मारना चाहते मार दो। पहली बार अंगुलीमाल ने देखा कि कोई व्यक्ति इतना निर्भय है, इतना निडर। मैं चेतावनी दे रहा हूं, मरने की चेतावनी दे रहा हूं, मरने से भी नहीं डर रहा। बोले मारना है मार दो, बस मारने के पहले मेरे एक काम कर दो। बोले क्या? तुम्हारे हाथ में इतना सुंदर फरसा है, ये पेड़ दिख रहे हो? बोले हाँ पेड़ है। बोले काय का पेड़ है? बोले नीम का पेड़ है। क्या मुझे 4 डगाल तोड़ करके दे सकते हो? बोले 4 डगाल में क्या बात, 4 पत्ती में क्या बात है? फरसा मारता है, बहुत सारी डगाल टूट करके गिर जाती है। बहुत अच्छा। बोले अब तुमने 4 मांगी थी, मैंने तो पूरा का पूरा पेड़ एक बार में तोड़ कर रख दिया। बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया, बस एक काम और कर दो, उसके बाद तुम मुझे मार देना। बोले क्या? जहां से इसे तोड़ा है, काटा है, बस उसे जोड़ करके आ जाओ। क्या कहते हैं वो? जैसे उसे तोड़ा है, जहां से उसे तोड़ा है, उसे जोड़ करके आ जाओ। तो कहता है अरे तोड़े हुए पेड़ को, तोड़ी हुई शाखा को जोड़ा कैसे जाता है? इसे कौन जोड़ सकता है? तो जुड़ती ही नहीं है, तो टूट गई तो जुड़ती ही नहीं, संभव ही नहीं है। साधु कहते हैं मेरे पास वो कला है, मैं उसे जोड़ सकता हूं। बोले तोड़ना बहुत आसान है संसार में, मारना बहुत आसान है संसार में, काटना बहुत आसान है संसार में, लेकिन तोड़े हुए को जोड़ना बहुत कठिन है, असंभव है। उसे मिलाना बहुत असंभव है। तुम तोड़ने का कार्य करते हो, मैं जोड़ने का कार्य करता हूं। मैंने आज तक सिर्फ जोड़ा है लोगों को। बस ये बात सुनते ही वो अंगुलीमाल जिसके हाथ में फरसा था, फरसा उसके हाथ से छूट गया और वो उनके चरणों में बैठ गया। आंखों से थर थर आंसू हो गए, निकलने लगे। बोले मुझे पहली बार ऐसा इंसान मिला जिसने ये सिखाया कि तोड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण संसार में जोड़ना होता है। आप लोग हमारी बात सुन रहे हो? उसने माला उतार करके रख दी, उसने अपना रूप छोड़ दिया, वेश छोड़ दिया और उन्हीं साधु के चरणों में बैठ गया। बोले नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना और मैं आप जैसा होना चाहता हूं। जो अभी तक मरा मरा का राट लगाता था, अब वो साधु के साथ बैठ करके कहने लगा मुझे कुछ रास्ता बताओ ताकि मैं जोड़ सकूं। तो साधु कहते हैं ठीक है। बोले तुम राम राम की जाप दो। बोले क्या? बोले राम 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 राम। बोले राम राम मुझे तो नहीं आता, राम राम मुझे नहीं आता। तो बोले क्या आता है? मरा मरा तो मुझे आता है। बोले ठीक है, तुम मरा मरा ही बोलना शुरू कर दो। मरा यानी पेड़ होता है ना कन्नड़ में, मरा यानी वृक्ष ही होता है। तो बोले ठीक है, तुम मरा मरा ही बोलना शुरू कर दो। और वो मरा 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 से क्या हो गया? वो जो बोल रहा था मरा 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 मरा, अब वो हो गया राम 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 राम। अभी तक मरने की बात चल रही थी, बस उससे विपरीत कदम बढ़ाना शुरू कर दो। जो मार रहा था अब वो जोड़ने वाला हो गया, जो मरा कर रहा था वो राम करने वाला हो गया, जो संसार को सताने वाला था संसार को बचाने वाला हो गया, जो एक बहुत बड़ा खूंखार डाकू था। बस इतना सुनते ही, साधु के दर्शन पाते ही, साधु के उपदेश को पाते ही वो स्वयं एक संत बन गया। जो दुनिया उससे कपकपाती थी, थर्राती थी, अब उसे खोज करके आने लगी। सुनना कि वो डाकू एक संत बन गया, योगी बन गया।
कुछ समझ में आ रहा है था आपको? हाँ, तो आप लोग क्या बनोगे? क्या बनोगे? भले ही आप संत बनो अथवा ना बनो, साधु बनो अथवा ना बनो, एक इंसान बन जाना। बन जाओगे, ये संकल्प लेना है। इसलिए पंक्ति आपसे कहीं, मैं अपनी मान लूं गलती, चला सद राह पर देना, मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर, मुझे मौका बस एक देना, कि मैं अफसोस कर पाऊँ, जब भी हो शाम जीवन की, मुझे इत्तलाह कर देना। हमारे गुरुदेव बस जोड़ने के रास्ते पे चले। उन्होंने आप जैसे बंदियों के बारे में सोचा, हर जेल में रहने वाले कैदियों के बारे में सोचा, उनके हृदय को परिवर्तित करने के लिए सोचा, उन्हें रोजगार देने की बात लेकर के आए। तो इस बीजापुर के केंद्र कारागृह में आज से बस रोजगार की शुरुआत हो रही है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और ध्यान केंद्र, उम्मीद है, आशा है आप इस पे खरे उतरोगे, और जब यहाँ से जाओगे तो मरा मरा भले ही बोलोगे, लेकिन वो मरा मरा राम राम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बहुत अच्छा। सबको बहुत 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 आशीर्वाद। आप अपने जीवन को एक नई दिशा दो, एक नई सुबह के साथ शुरुआत करो। सूर्य अस्त होता है, लेकिन पुनः अगले दिन उदय को प्राप्त होता है और नई यात्रा पे चलता है। अतीत हुआ उसे पश्चाताप करके बुलाओ और एक नई शुरुआत, नया जीवन, नई सुबह, नई चेतना, नई ऊर्जा, एक नया व्यक्तित्व आप लोगों के भीतर से निकल करके। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ये सब कुछ अच्छा रहा तो इसके साथ भविष्य में और भी कुछ योजना यहाँ पर ला सकते हैं, हथकरघा की योजना, और जो आवश्यकता जो आप चाहते हैं वो भी कुछ आपके अनुसार यहाँ पर आगे विद्या ग्रेस फाउंडेशन के माध्यम से, दानदाताओं के माध्यम से ला सकते हैं। जी बोले परम पूज्य निरापक श्रमणमणि वीर सागर जी महाराज जी की। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लावलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखो इस जेल में चलते फिरते जो भगवान है उनके शिष्य आपके यहाँ आए और हृदय परिवर्तन का कार्यक्रम पहले दिन हुआ था। कई लोगों के आंखों में आंसू भी थे कि जिन गलतियों का उन्हें पश्चाताप हो रहा है, वे आंसुओं के माध्यम से उसे प्रदर्शित कर रहे थे कि हमने अपने जीवन में गलतियां किन कारणों से की थी, और गुरुदेव आपने हृदय परिवर्तन करा करके हमें एक ऐसा मार्ग बताया है। इतना जरूर करना। जेलर साहब, सुप्रिटेंडेंट साहब से भी निवेदन करता हूं, यहाँ के जेलर साहब से भी, कि यहाँ कैदी इस जेल से जब बाहर निकले और अपने घर की ओर चले तो हो सके तो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए एक बार उसको जरूर भेजना। जहाँ भी गुरुदेव हो भारत में, उनके आने जाने की व्यवस्था, पूरी टिकट केसों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। लेकिन यहाँ से जब भी निकलें तो एक बार गुरुदेव के दर्शन करने अवश्य आना कि हे गुरुदेव, आपने 3 बार जेल में पधार करके हमारे हृदय का परिवर्तन किया था और हम में परिवर्तन आ चुका है, और जो आपने मार्ग दिया था, यहाँ पर आचार्य विद्यासागर कंप्यूटर प्रशिक्षण ध्यान केंद्र प्रारंभ होने जा रहा है। हो सके यंग लोग हैं जो इसको सीख लेंगे, बाहर जा करके कंप्यूटर पर काम करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि बताया था कि मेरे ख्याल से हथकरघा का भी कुछ चलता है ना आपके यहाँ पे, अभी नहीं चल रहा है ना, और बेकरी के भी प्रोडक्ट बना करके भी कुछ कार्य सीख रहे हैं। लेकिन जैसा गुरुदेव ने बताया कि एक हथकरघा प्राप्त करके आप अपने जीवन में अपने परिवार का पोषण कर सकते हैं, वो भी आपको रोजगार मिलेगा, ऐसी गुरुदेव की भावना है। हम सभी की भावना पूर्ण हो। मैं इस बीच निवेदन करता हूँ श्री शीतल जी से कि उस अवसर पर अपना उद्बोधन देवे। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀನರಾಗಂಥ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದ, ಎರಡೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೊಂದು ಕಹಾವತ್ ಅದ, ಸಂತ ಕಾ ಆನ ವಸಂತ ಕಾ ಆನ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಂತರು ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ವಸಂತ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ, ತಂಗಾಳಿ ಬಂದಂಗೆ. ಹಂಗೆ
ಈ ಜೈಲಿಗೆ ತಂಗಾಳಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾರ. ಹಾಗೆ ಈ ಜೈಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರು ತಂಗಾಳಿ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದ. ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿರುಗಾಡಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಏನು ಚುಚ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚುಚ್ತಾವೆ ಹಳ್ಳ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮತ್ತಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೊಂದು ಎ ಸಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೊಂದು ಎ ಸಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಕ ಹಾಕಿರತ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಚೀಸ್ ಅದ ಇದು. ಇದ್ರ ಸದುಪಯೋಗ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾರ. ಇವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋತ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತರಾಗಿರಿ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೆಂಪೋ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮುಂದೊಂದು ಕೈಮಗ್ಗ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಅದ. ಕೈಮಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೈವಸ್ತ್ರ ಅದು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಸಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬರೋ ಖರ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಕೊಂತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಹೇಬ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರಗಳು. चलिए अब हम